यस सर कर दिए। So the next unit, last unit, unit 4, I think unit 4 ही है ये, यहाँ से start हो रहा है। Vector field, integration in vector fields, 16th chapter 16 है, integration in vector fields. First is 16.1 is line integral. Line integral, very important concept, line integral. So previously we were integrating in the definite integral over the interval. जो आपने definite integral पढ़ा a to b sum fx dx, it means what, that x is lying between a to b, so you are having that you are integrating in an interval, you know. Now here we extend the theory to the curves and surfaces, means if you are integrating over some line, in place of integral, suppose you are integrating over a curve, line या curve, you are moving along a curve C, suppose this C curve C, so if we are integrating over this curve, अगर हम कर्व के थ्रू मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ सपोज करिए, देन वी दिस इज कॉल्ड अ लाइन इंटीग्रल. लाइन इंटीग्रल क्या हुआ, दिस इज द मोर जनरल इंटीग्रल, इस डेफिनेट इंटीग्रल का जनरलाइजेशन है. Here you will be integrating over a curve C. If we integrate over a curve C, यहाँ पे तो आप A to B मूव कर रहे थे, यहाँ पे AC along a curve मूव कर रहे हैं. So what I will do, I will write the parametric equation of the curve and then take the limits. And these integrals are used to find the work done by a force in moving an object along a path. Suppose an object is moving along this path from here to here, along this curve. If an object is moving, so how much work done is how much work done? So you can find a work done by a force, or find the mass of a curved wire with variable density, and so many things which you will see in the coming chapters, what the things we can find. Similarly, line integral से जनरलाइज करके फाइंड कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल, व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग surface integral over surface. So how we do this? Suppose I have a curve in a space. You have x, y, and z, and here some curve is given to you. It is a curve like this, and here it is, suppose the curve is represented by some parametric form RT. RT is the position vector. RT क्या कहलाता है, इसका position vector. So T is from A to B. Suppose I am taking a curve between T is A to B. So here, what I want to find the integral. So here we will do like we have done the Riemann sum. If we divide, suppose let f is a function f x y z. This is a real valued function. Real valued function means what? The value will be some real number. This is a real valued function. ये क्या होगा? 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R3 to R, है ना? It's a real valued function, and we want to integrate this. Suppose this, and we want to integrate. We integrate this fxyz over the curve C,
किसी कर्व सी के ओवर इंटीग्रेट करना है। ये कर्व आपका सी के बिना, दिस इज अ कर्व सी सपोज। कर्व के बारे में क्या दे रखा है? कर्व इज लाइंग विद इन द डोमेन पैरामीटराइज्ड बाय, कर्व की इक्वेशन गिवन है, कुछ पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है आपको, पैरामीटराइज्ड बाय सम RT is equal to some GTI plus HTJ plus KTK। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है कर्व की, है ना, RTJ। जैसे सर्किल की इक्वेशन क्या होती है? cos TI प्लस sin TJ, ना, वो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है सर्किल की। सर्किल को मैं पैरामीट्रिक इक्वेशन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? cos TI प्लस sin TJ। ओके, तो कोई कर्व है जो पैरामीट्रिक इक्वेशन इसकी गिवन नहीं है, क्योंकि स्पेस कर्व है ये आपका स्पेस, ये प्लेन कर्व होता है। सर्किल इज अ प्लेन कर्व, प्लेन में होता है। दिस इज स्पेस कर्व, सो आई विल बी टेकिंग थ्री कंपोनेंट्स GT HT KT, है ना, IJK। So I want to integrate this function over the curve C, whose parametric equation is given by this, where T is lying between A to B। जब पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन होती है तो यू हैव टू गिव इट द टी लिमिट। जैसे यार टी की लिमिट्स क्या होती है? 0 to 2π, है ना। तो एक सर्किल कंस्ट्रक्ट करता है दिस I can integrate। So how I will integrate? The same way like we have done in your definite integral, by partition, taking partition, रेक्टेंगुलर रीजन को डिवाइड किया था रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में, या नॉन रेक्टेंगुलर रीजन को हमने डिवाइड किया था वेजेस में। सेम थिंग इफ आई एम डिवाइडिंग दिस कर्व सपोज इनटू सम फाइनाइट नंबर ऑफ सब आर्क्स, उस सब आर्क्स में डिवाइड कर दे, सब आर्क्स इस तरीके से, है ना। आई एम डिवाइडिंग इट इनटू सब आर्क्स, ये छोटे छोटे सब आर्क्स है। एंड सपोज आई एम टेकिंग एनी kth सब आर्क, एक kth सब आर्क लिया, इसकी हमने कह दिया कि इसकी लेंथ डेल एस के, होल इज एस, एंड दिस स्मॉल सब आर्क हैज लेंथ डेल एस के, इतनी जो लेंथ है डेल एस के। ओके, सो इन ईच सब आर्क आई कैन चूज अ पॉइंट एक्स के वाई के जेड के। इस पे कहीं पर भी आर्बिट्रेरी आई कैन चूज अ पॉइंट एक्स के वाई के जेड के। सपोज मैंने यहाँ पर एक पॉइंट चूज किया आर्बिट्रेरी एक्स के वाई के जेड के, आर्बिट्रेरी पॉइंट, है ना। देन द सम, अगर मैं ऐसे लूँ, समीशन k इज इक्वल टू 1 to n द वैल्यू f एट दिस पॉइंट x के y के z के, और इसकी हम इंटू कर दें डेल एस के से, इस सब आर्क, जो सब आर्क था ये इसकी लेंथ से। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज सिमिलर टू रिमानियन सम। रिमानियन सम के सिमिलर है जो हमने रिमानियन सम डिफाइन किया था। Now because the point is arbitrary, I can choose the point arbitrary anywhere, है ना, and I can take arc very small also। So if we take n tending to infinity, Sn, ठीक, if this is very, तो क्या होगा? लिमिट n tending to infinity में what will happen? Sk will be tending to, delta Sk will be tending to 0, है ना। जितने ज्यादा सब आर्क्स करेंगे डेल्टा Sk उतना स्मॉल होगा। तो n tending to infinity पे your delta Sk will be tending to 0। So if this limit exists, we say that this will be, if limit, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? Over the curve C, f x y z and del sk I can write ds। So this limit will become line integral over the curve C, provided limit exists। So that is the definition of line integral। Means this how to define this integral. If f is
defined on a curve C given parametrically RT is equal to GTI, ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए वेक्टर साइन लगा रहा हूँ, GTI प्लस STJ प्लस KTK, and T is lying between A to B. Then the line integral of f over c is, है ना, ये the line integral of any function f over c. This is given by c f of x y z ds. ये होता है, ये क्या है, ये what is this, ये यहाँ से आया concept अब limit which is nothing but, which is in fact limit and tending to infinity summation k is equal to 1 to n f of x k y k z k del s k. So this will be this provided this limit exists. Limit exists करनी चाहिए. This will be the line integral. So this is a line integral over a curve C. ये तो इसका concept है, how it comes. So it is the same as having the like Riemannian sum. We have find Riemannian sum. So when we were defining integral over interval, तो अपने इंटरवल में था, तो वहां पर इंटरवल को आपने डिवाइड किया था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में या नॉन रेक्टेंगुलर में. यहाँ यू आर डिवाइडिंग द कर्व सी. ओके, डेफिनेशन क्लियर है भैया स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. ठीक. Yes, sir. So it is a definition of a line integral, how it is defining. Now how to find it, how to take the limit, and this that thing we can find. तो एस टी की वैल्यू देखो, ये जो डी एस है, देखिए अगर हम थोड़ी सी पीछे जाएं, अगर आपको याद हो कि अगर सपोज दिस इज अ, ये आपके पास अगर स्मॉल आर्क लेंथ डी एस है, दिस इज योर एक्स वाई, तो हेयर अगर मैं इसे एक्स वाई के टर्म्स में लिखूंगा तो यू नो कि हेयर इट इज स्मॉल लेंथ डी एक्स, इट इज स्मॉल लेंथ डी वाई. तो अगर इट इज वेरी स्मॉल, तो इट इज वेरी स्मॉल दैट दिस कर्व लाइन कैन बिहेव लाइक अ लाइन. तो आई कैन राइट बाय द पाइथागोरस थ्योरम ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर. ये लिख सकता हूँ मैं सपोज, है ना, इट इज वेरी स्मॉल, तो दिस कैन बिहेव लाइक अ लाइन. तो आई कैन राइट ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर. ओके, और ds is under root dx square plus dy square for a small arc length ds. Now this is ds. तो अगर ये ds की वैल्यू है, अब अगर आपको पूरा आर्क लेंथ निकालना होता, सपोज इट इज लाइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, सो आर्क लेंथ, इसको हम इंटीग्रेट कर दें अगर, तो अगर आर्क लेंथ लेना है तो आर्क लेंथ में आप क्या करेंगे, सपोज इट इज लाइंग फ्रॉम x1 to x2, so what I will do, x1 to x2 आर्क लेंथ क्या होता है s, इसे हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो अंडर रूट x1 to x2 dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर dx, ये आर्क लेंथ आ जाएगा. दिस इज ds, इंटीग्रेट कर दे इसे बस, तो इट विल गिव यू द आर्क लेंथ. लेकिन आपको लेंथ लगानी पड़ी कहाँ से कहाँ तक, तो मैं अगर x के टर्म में कर रहा हूँ तो मैं x की लिमिट लूंगा कि x1 से x2 के बीच में कितनी आर्क लेंथ है, तो ये आपको आर्क लेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा. नाउ इफ आई विल राइट इन पैरामीट्रिक फॉर्म, अगर मैं इसे पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखूं x इज इक्वल टू एक्स टी
y is equal to yt. तो this st जो आर्क लेंथ है t के टर्म्स में it will become a to t. a is the initial point और t is the final point. t के टर्म में जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, अगर फाइनल पॉइंट पता होगा तो t is equal to b लिख दूंगा. It will become under root dx by dt whole square plus dy by dt whole square और dt. इस फॉर्मूले को हम ये लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला t के टर्म्स में. ठीक, क्या करा अंदर dx by dt, अगर x x t टर्म में तो dx by dt होल स्क्वायर dy by dt होल स्क्वायर dt. दिस विल बिकम इन टर्म्स ऑफ t और a to t. इसको अगर मैं मॉड v लिख दूं, मॉड v dt. ठीक है, मॉड v मीन्स वी आर सेइंग दैट अगर v आपका कोई वेक्टर, इफ r t is a parametric equation of a curve, so v is called the differentiation of this which is dr by dt. तो dr by dt क्या कहलाता है, वेलोसिटी वेक्टर कहलाता है. r का अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, इट इज टेंजेंट टू द कर्व. तो अगर आर टी आपके पास कुछ जी टी आई प्लस एस टी जे है तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी जी बाई डी टी आई प्लस डी एच बाई डी टी जे. तो इसका मॉड अगर आप करेंगे, मॉड क्या हो जाएगा, मॉड अंडर रूट डी जी बाई डी टी स्क्वायर. मॉड क्या होता है, कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस डी एच बाई डी टी होल स्क्वायर ना, ये तो मॉड होता है. तो इसी को मैंने मॉड लिखा है. यहाँ पे अगर आपका कर्व एक्स टी वाई टी के टर्म में था, इससे जी टी आई टी लिख ले, एक्स टी वाई टी, वो नोटेशन है, एक ही बात है. इसको मैं आर टी को ये भी लिख सकता हूँ, एक्स टी आई प्लस वाई टी जे. द पॉइंट इज दैट दिस इज नाउ इन टर्म्स ऑफ टी. ये लिख ले या लिख ले, दैट इज सेम. तो इसलिए से मॉड वी का है. मॉड वी इज व्हाट, द मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर. मॉडुलस क्या होता है वेक्टर्स का, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अगर ए आई प्लस बी जे है, इफ वी इज ए आई प्लस बी जे, यू नो मॉड ऑफ वी इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो हमने मॉड बी से रोटेट करा. तो एस टी विल बी मॉड बी डी टी. तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, डी एस बाई डी टी इज हाउ मच, डी एस बाई डी टी विल बी मॉड वी है ना, डी गेट विल रिमूव हियर, मॉड वी. मॉड वी का मतलब क्या, वही जो बताया, अंडर रूट डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी होल स्क्वायर. तो डी एस बाई डी टी की वैल्यू ये होती है इन टर्म्स ऑफ टी, एंड दिस इज योर एस टी. इट इज व्हाट, दिस इज योर एस टी. एस टी क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड आर्क लेंथ इक्वेशन. ये आर्क लेंथ इक्वेशन है, वेयर इनिशियल पॉइंट इज टी इज इक्वल टू ए, और अगर आपके पास फाइनल पॉइंट टी इज इक्वल टू बी रख देंगे आप, तो आपको इससे आर्क लेंथ निकल जाएगी पूरी, है ना. बी है या किसी पॉइंट पे अगर आपके पास एक आर्क है कि t इज इक्वल टू ए इज द इनिशियल पॉइंट, आपको मालूम करना है कि यहाँ तक आर्क लेंथ क्या होगा. आपको इसका पोजीशन वेक्टर मालूम होना चाहिए, t इज इक्वल टू व्हाट. अगर b है तो इतनी आर्क लेंथ आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से. इट इज द आर्क लेंथ इक्वेशन. ओके, एस टी इज इक्वल टू दिस. जैसे अगर मैं सर्किल ले लूं, सर्किल की इक्वेशन मैंने बताई क्या होती है, cos टी आई प्लस साइन टी जे, टी लाइंग बिटवीन 0 to 2 पाई. तो ये आपको मालूम है एक सर्किल है, ये इट विल गिव यू अ सर्किल, है ना, होल वन वन राउंड. 0 2 पाई का मतलब वन सर्किल. अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ का मतलब इसकी सर्कमफेरेंस, तो इस फॉर्मूला से आई कैन फाइंड एस इज इक्वल टू, अब सर्कमफेरेंस के लिए आई विल टेक 0 to 2 पाई. सर्कमफेरेंस अगर आर्क लेंथ निकालनी है मुझे 0 से 2 पाई, व्हाट इज द आर्क लेंथ. मॉड वी कितना होगा इसका, मॉड वी क्या आएगा बताओ, dx by dt whole square plus dy by dt whole square. How much? dx by dt is sin t, so sin square t plus cos square t dt है ना. तो ये तो 1 हो गया. क्या आ गया इसकी आर्क लेंथ, 2 पाई. ये तो 1 है ना.
एंड यू नो इट्स लेंथ 2 पाई है क्योंकि यहाँ पे इसका रेडियस 1 है। इट्स इक्वेशन whose center is 0 and radius is 1। तो 2 पाई लेंथ आ गई, आपको मालूम है 2 पाई आर से 2 पाई होती है। सो दिस इज द आर्क लेंथ इक्वेशन। यू कैन फाइंड द आर्क लेंथ बाय पुटिंग टी द फाइनल पॉइंट जहां तक आपको कर्व की लेंथ काउंट करनी है। सो हेयर यू गॉट ds by dt is this। तो ये जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा था एफ एक्स वाई जेड डी एस, एक्चुअली मुझे पॉइंट इज कि अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट के लिए आई वांट टू पुट द लिमिट। तो लिमिट पुट करेंगे हम टी के टर्म्स में क्योंकि कर्व आपका पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो अगर टी के टर्म्स में लिखेंगे तो इसे डी एस को मुझे डी टी में चेंज करना पड़ेगा। वो हम किससे चेंज करेंगे? इस फॉर्मूला से। देखो तो डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉड वी डी टी, है ना। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ से डी एस कितना हो जाएगा? मॉड वी डी टी। ये रिप्लेसमेंट में वहां कर सकता हूँ। तो जो आपका तो ये जो हमारे पास सी एफ एक्स वाई जेड डी एस था, इसको आई कैन राइट एफ ऑफ, अब यहाँ एक्स वाई जेड की जगह क्योंकि टी में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे टी के टर्म्स में, एफ ऑफ जी टी एस टी के टी। और डी एस की वैल्यू मैंने जो बताया अभी क्या है? मॉड वी डी टी। तो यू कैन राइट मॉड ऑफ वी टी डी टी, क्योंकि टी का फंक्शन है ये। और लिमिट ए टू बी। अब ये आपके पास टी के टर्म्स में आ गया। So it will give you the line integral over the curve C whose parametric equation is RT is equal to GT ST this. Okay. So it will give you the formula. It is the formula for finding line integral. This is the formula. Okay. चलो एक प्रॉब्लम देखते हैं, और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 902। इंटीग्रेट एफ एक्स वाई जेड is equal to x minus 3y square plus z over the line segment C joining the origin to the point 1,1,1। ठीक, इस फंक्शन को आई वांट टू इंटीग्रेट ओवर द लाइन सेगमेंट सी। अब यहाँ पे कर्व जो है वो आपका लाइन सेगमेंट है, ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट 1,1,1। फिगर गिवन है इसमें, इसकी फिगर नहीं भी गिवन हो तो आप प्लॉट कर सकते हैं कि इट इज योर origin x y z 1,1,1 point will be here somewhere in the space, है ना। और लाइन सेगमेंट क्या है? ज्वाइनिंग द ओरिजिन। ओरिजिन से अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, दिस इज सी कर्व। ये सी कर्व गिवन है। कर्व इज व्हाट नाउ हियर? इट इज अ लाइन सेगमेंट। तो ओवर दिस कर्व, ओवर दिस लाइन सेगमेंट आई वांट टू फाइंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इज इट क्लियर? तो फंक्शन की वैल्यू तो आपको गिवन है एक्स वाई जेड के टर्म में। तो व्हाट फर्स्टली आई हैव टू राइट? फर्स्ट थिंग आई नीड द, क्या बताया था ये? व्हाट आई नीड? आई नीड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व, है ना। सी गिवन इन पैरामीट्रिकली। तो मुझे जो सी गिवन है इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखनी है पहले। सी क्या है यहाँ पे? सी इज अ लाइन सेगमेंट। तो व्हाट इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट? दिस आई हैव टू राइट। कोई बता सकता है इस लाइन की पहले पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगी? आई कैप हाँ प्लस जे कैप हाँ। प्लस के कैप। और टी कहाँ है? टी नहीं आएगा। देखो आपको अगर याद हो, वेक्टर इक्वेशन अगर पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through some
some vector, some point A in the direction of U is, इसकी इक्वेशन ये होती है वेक्टर इक्वेशन, ए से पास हो रही है तो ए इज अ पॉइंट प्लस टी वी, टी यू, अगर यू है तो यू, इट इज अ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू सम पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ यू। तो यहाँ पे पासिंग थ्रू ओरिजिन है और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या होगी इस लाइन की, वो अगर मैं ओपी ले लूँ, व्हाट इज ओपी डायरेक्शन, ओपी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, यस सर। क्या है 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, क्यों डायरेक्शन पूछ रहा हूँ मैं, लेंथ नहीं। ओपी की डायरेक्शन क्या होती है, पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ ओ यस सर। इंटू आई आई प्लस कैप प्लस 1 माइनस 1 जीरो माइनस 0 जे कैप और 1 माइनस जीरो के ठीक कैप, है। है ना, ये इसकी डायरेक्शन होती है। तो ये आपका यू है, कितना हो गया ये, आई प्लस जे प्लस के। सो इक्वेशन ऑफ आर टी पासिंग, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू इन द 0 डायरेक्शन ऑफ यू, 0 0 प्लस टी इन आई कैप प्लस जे कैप प्लस तो ये के होगा कैप इसका, प्लस। देखो पॉइंट क्योंकि R3 में है तो 0 0 0 प्लस टी टाइम्स यू, आपने ये निकाला है आई प्लस जे प्लस के, ये यू डायरेक्शन हो गई। सो हाउ मच इट इज कमिंग, टी आई, टी आई के प्लस टी जे प्लस टी के। इट इज द इक्वेशन, इट इज द पैरामीट्रिक, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गया आपको वेक्टर से। यहाँ पर टी पे लेकिन आप रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, टी कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में, 0 to 1। है ना। आप यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, टी 0 लूंगा तो मैं यहाँ पर पहुंच जाऊंगा इनिशियल पॉइंट पे, ये आपके पास आर टी है, देखिए इफ यू विल पुट R0, तो R0 इज, ये पोजिशन वेक्टर देता है आपका 0, क्योंकि 0 आ जाएगा। अगर आपने R1 लिखा तो R1 विल बी आई प्लस जे प्लस के, यानी कि क्या है ये 1,1,1, ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया। ऐसे बीच में हाफ टी हाफ रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, ये हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन पता चल गई, टी की लिमिट पता चल गई। फॉर्मूला आपके पास ये है एफ जी टी एस टी के टी। अब जी टी क्या है, यहाँ पर जी टी का मतलब है आई का कोफिशिएंट, एस टी मीन्स जे का कोफिशिएंट, के टी मीन्स के का कोफिशिएंट, तो सब यहाँ पर टी है। ओके, तो आई विल फाइंड मॉड ऑफ वी टी नाउ। मॉड ऑफ वी टी क्या था, अभी क्या बताया, मॉड ऑफ वी टी इज हाउ मच, वी टी की वैल्यू क्या है ये, dx by dt होल स्क्वायर प्लस हाँ, सो मॉड ऑफ वी टी इज योर अंडर रूट dx by dt होल स्क्वायर प्लस dy by dt होल स्क्वायर, यहाँ 3 डायमेंशन में है तो dz by dt होल स्क्वायर, है ना। और ये क्या थे, ये कहाँ से आ रहे थे, ये क्या थे, ये दिस वाज कमिंग फ्रॉम आर, बताया था ना अभी, देखो अगर आर लिखा यस हुआ है तो डी आर बाई डी टी, तो आपके पास जो आर था, आर की क्वेश्चन ये है टी आई प्लस टी जे प्लस टी के, सब कैप है, तो डी आर बाई डी टी, इनफैक्ट ये डी आर बाई डी टी है ये, इट विल बी व्हाट, dx by dt, that means I plus j plus k, ये सब t है तो 1 हो गया। ओके, तो इसका जब हम मॉड, अब इस ये आपके पास क्या है, ये है vt, dr by dt, कहाँ गया vt, ये लिखा था, दिस इज योर v, dr by dt, ये होता है vt। इसका मॉड अगर मैं लूंगा तो मॉड ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आ गया, अंडर रूट 3। सो हाउ मच इट इज कमिंग, अंडर रूट 3, है ना। यहाँ एक्स टी कितना है, देखो यहाँ पर एक्स टी टी है, वाई टी है और जेड टी भी टी है। ये एक्स टी वाई टी जेड टी क्या है, दे आर द कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के इन आर टी, ये होते हैं ये, ठीक है, ये यहाँ लिखना है इसे। तो मॉड ऑफ बी टी पता चल गया आपको, तो नाउ यू कैन फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वाई जेड। मुझे क्या निकालना है, प्रॉब्लम पूछी थी, इंटीग्रेट ओवर द लाइन सेगमेंट, सो इट विल बी व्हाट, सी ds, ये है लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला। और इसको मैंने भी क्या बताया आपको,
इंटीग्रेशन f of xt yt zt mod of vt dt और t की लिमिट, तो t की लिमिट तो हमें मालूम है 0 to 1, तो क्या हो जाएगा ये 0 to 1 f of t t t mod of vt is अंडर रूट 3 dt, तो रूट 3 आउटसाइड। अब ये टी 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 कहाँ रखना है हमें, इस फंक्शन में उठा के रख दीजिए एक्स वाई जेड की जगह, कितना हो जाएगा टी t माइनस minus 3t square प्लस plus टी, t. ये यहाँ रखते हैं, ठीक है, एंड डी टी, इसकी वैल्यू निकालना आसान है, 2t माइनस 3t स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दो इसे, कितना आ रहा है √3 आएगा सर। 2t माइनस 3t स्क्वायर डी टी, ठीक है क्या आएगा टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब 0 to 1, कितना आ गया 0 0. 0 आ गया, so this value is 0. In this way you can integrate the function over the curve C. बस आपको कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन मालूम होनी चाहिए और t की लिमिट क्या है, उसे उठा के इस फॉर्मूले में रख देना, जो हमने फॉर्मूला बनाया अभी, ये वाला फॉर्मूला, ये, ठीक है, इज इट क्लियर। तो ये इसने आपको Clear. वैल्यू दे दी। अब यहाँ पर f डिपेंड कर, हम जब f को फिजिकल क्वांटिटी लेंगे तो आपको पता ये दे देगा क्या है, कि अगर f यहाँ पर फोर्स होता तो ये आपका वर्क डन हो जाता है ना, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे अगर फोर्स दिया हुआ होता कि साहब इट इज अ फोर्स अप्लाइंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम 0 to 1 अलोंग द लाइन सेगमेंट, यहाँ से यहाँ मूव करने में कितना वर्क डन है, तो उस केस में ये आपका वर्क डन आ जाता कि वर्क डन 0, ठीक है। वो अभी हम आगे जब प्रॉब्लम्स लेंगे तो वहां पर क्लियर होगा कि फिजिकली व्हाट द थिंग्स दे आर गिविंग। इट हैज एडिटिव प्रॉपर्टी आल्सो, इसमें एक एडिटिविटी प्रॉपर्टी होती है, यू कैन हैव एडिटिविटी व्हाट, कि इफ योर कर्व सी, जो सी कर्व है, इट इज मेड, सी इज मेड बाय ज्वाइनिंग different curves, by joining a finite number of smooth curves, C1 C2 and so on Cn, है ना, end to end, मतलब क्या हुआ, क्या कर्व आपका सपोज लाइन सेगमेंट ही ले लूं मैं, इस तरीके से बना हुआ है ये एंड सो ऑन, या लाइक C1 C2 C3 C4, ये पूरा C कर्व है, तो अगर इस पूरे ओवर C हमें FDS निकालना है, तो दिस विल बी इक्वल टू C1 FDS प्लस C2 FDS प्लस C3 FDS प्लस C4 FDS, ओके, एंड सो, अगर n है तो n फाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स, क्योंकि दिस इज डिफरेंट कर्व, इसकी इक्वेशन कुछ और आएगी, इसकी कुछ और, तो आई कैन फाइंड इन दिस वे आल्सो द होल C इज मेड अप बाय ज्वाइनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ स्मूथ कर्व्स, देन आई कैन फाइंड दिस, है ना, स्मूथ कर्व्स होने चाहिए बिकॉज आई वांट टू फाइंड dr/dt, अगर स्मूथ कर्व नहीं, स्मूथ का मतलब क्या हुआ, विच इज डिफरेंशिएबल, अगर स्मूथ नहीं होगा तो आई कैन नॉट फाइंड dr/dt, सो दिस इज डिफाइंड ऑन अ स्मूथ कर्व्स, तो जो हम r ले रहे हैं, दिस इट इज व्हाट, दिस मस्ट बी अ स्मूथ कर्व। तो जैसे एग्जांपल 2 है, सेम प्रॉब्लम जो एग्जांपल 1 में की थी, है ना, इन प्रॉब्लम इन एग्जांपल 1 इंटीग्रेट, फंक्शन भी वही है आपका f(x,y,z) इज इक्वल टू x माइनस 3y² प्लस z, इसे इंटीग्रेट करना है ओवर C1 यूनियन C2, वेयर C1 and C2 are the path reaching from this, where C1 C2 is what,
where C1 and C2 are two different paths. Reaching to 1,1,1। यहाँ पर जैसे आपके पास 1,1 इस प्रॉब्लम में पहुंचे, हम यहाँ ऐसे पहुंच गए, है ना। अब यहाँ पर मैं 1,1 पर आई कैन रीच बाय टेकिंग टू डिफरेंट पाथ्स। इस पॉइंट पे अगर हमें पहुंचना है, तो एक तो आपके पास ये गिवन था अभी जो पिछली प्रॉब्लम की है। अब वो कह रहे हैं ऐसे ना करके इससे आप पहुंचे फर्स्टली थ्रू दिस एंड देन दिस। ओके, ये पाथ है। तो यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, यहाँ पर 1,1,0 है ना, ये y है, ये x है। तो अभी हमने इसको c के लिए करा था। नाउ दे आर सेइंग कि इंटीग्रेट इज ओवर c1 एंड देन c2। ये ओरिजिन है। इज इट क्लियर? तो आई विल फाइंड इट। व्हाट अबाउट दिस? तो हमें अब यहाँ पर जो इंटीग्रेट करना है इसके अराउंड करना है। तो बाय दिस एडिटिव प्रॉपर्टी आई कैन फाइंड दिस c एज अ c1 plus c2।